हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं साइंस चैप्टर नंबर 3 विच इज अडेप्टेशन इन एनिमल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं। वी हैव टू सी हाउ आर एनिमल्स अडेप्टिंग टू देयर हैबिटेट। अडेप्टेशन और हैबिटेट वर्ड्स तो आपने पहले सुने होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अडेप्टेशन क्या होती है। अडेप्टेशंस आर द स्मॉल चेंजेस दैट a person or an animal is making. And what is the habitat? Habitat is the natural surrounding. आज इसी से हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में कि एनिमल्स कैसे अडेप्ट कर रहे हैं टू देयर सराउंडिंग। लेट अस सी व्हाट आर द करिकुलर गोल्स दैट वी हैव। The curricular goals are understand that different animals live in different habitats. जो अलग एनिमल्स हैं वो एक अलग हैबिटेट में रहते हैं, like land, water and air. Understand why some animals migrate to different places during certain seasons. हमें ये समझना है क्यों कुछ एनिमल्स माइग्रेट करते हैं टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। कुछ सीजन्स में कैसे एनिमल्स दूसरी जगहों पर जाते हैं। अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स मूव वॉक। अब एनिमल्स मूव कैसे कर रहे हैं, लाइक वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, इनके थ्रू एनिमल्स मूव कैसे कर रहे हैं ये भी हम समझेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग कवर कर चुके होंगे। अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन वेरियस हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में एनिमल्स कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। व्हाट आर देयर ईटिंग हैबिट्स and what are the organs for their breathing and for their movement. And lastly we'll talk about what about migration. कि migration क्या होता है? Migration is a switch in place, like when the animal goes from one place to another. हम देखेंगे migration होती क्या है और क्यों करने की जरूरत पड़ रही है migration, है ना? ठीक। Now let us start by reading. We see different types of animals around us. हम अपने around different types of animals देखते हैं. Some animals are found on land. कुछ animals हमें कहाँ मिलते हैं? They are found on land and some in water. कुछ water में मिलते हैं. Some in air. कुछ air में मिलते हैं. Some live in deserts. कुछ deserts में रहते हैं and some in cold regions. कुछ कोल्ड रीजन्स में रहते हैं. सम इन डीप ओशंस, कुछ डीप ओशंस में भी रहते हैं. Each kind of animal has certain characteristic or feature that suits it to live in the habitat. हर एनिमल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होगा which suits in living in that habitat. उस हैबिटेट पे रहने के लिए उस एनिमल को हेल्प करेगा. The surrounding in which animal lives, जिस सराउंडिंग में एनिमल रह रहा है, ग्रो कर रहा है, खाता है, lives, eats and grows is called its habitat. जो सराउंडिंग है जिसमें वो रहा, उसने खाया, वो उसका क्या बन गया? हैबिटेट बन गया. Changes in behavior of organisms that help them survive in that habitat is called adaptation. जो चेंजेस आए उनके बिहेवियर में जिससे वो उस हैबिटेट में अडेप्ट कर पाए, that is called adaptation. These features of animals are called adaptive features or adaptation. इन features को adaptive features या adaptation भी बोला जा सकता है. Okay? What is a habitat now? Habitat को और अच्छे से समझते हैं. A place where an animal naturally lives is called the habitat. जहाँ naturally वो animal रहता है वो उसका habitat बन जाता है. For example, forest हो गया, desert, polar region, high mountains, ocean, fresh water, ये कुछ different habitats हैं. अभी animals देखिए, camel हमारा desert में है, water हमारी fish हमारी water में रहती है, duck or a bird, it flies in the sky, and then we have the frog which lives both on the land and in water. Okay? अब अलग अलग habitat के हिसाब से adaptation of animals due to their various habitat we are going to see here. First we have forest. What is the forest? A large area that contains different kinds of trees and plants is called a forest. ठीक है. अब what does a forest provide? Forest provide habitat to various animals and different animal live in different places. Forest में भी अलग animal अलग जगहों पर रहते हैं. Like
Lion, tiger, bear live in dens or burrows. Some animals like snakes and rat live in holes. ठीक है, अब कुछ हमारे जो टाइगर्स होते हैं और लायन होते हैं वो डेन या बरो में रहते हैं, whereas rat and snake they live in holes. Monkey हो गए, birds हो गए, they generally live on a tree, right? Now we have desert. Desert क्या होता है? It is a dry and hot region with very little rainfall. इधर बहुत कम रेनफॉल होती है. In desert, animals adapt to environment around them. डेजर्ट में एनिमल्स अडेप्ट करते हैं अपने अराउंड के एनवायरमेंट में. मेनी टाइप्स ऑफ रैट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और कैमल्स लिव इन डेजर्ट. ये कुछ एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं. और कैमल को तो हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कैमल कई बार यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस अडेप्टेशन ऑफ कैमल हैज मेड. ओके, we'll see the camel's adaptation while living in the desert. Desert में रहते हुए उसके क्या adaptation है? Its feet are paddy. इसके जो feet होते हैं वो paddy होते हैं, to which it can easily walk or run on sand. जिसके through ये easily walk या run कर पाता है किसमें? Sand में. It has one or two humps which have food stored in form of fat. इसके पास एक या दो हम्प्स भी होते हैं जिसमें फूड स्टोर्ड होता है in the form of what? In the form of fat. It can use the fat from its hump at places without food. अब अपने हम्प में जो इसने फैट इकट्ठा किया हुआ था, it can use that जब इसको खाना ना मिले. ठीक है, it conserves water also. एंड वो सेल्स कहाँ, स्पेशल सेल्स कहाँ होते हैं? इसके स्टमक एंड हम्प में. स्टमक एंड हम्प में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहते हैं? विच हेल्प इट टू कंजर्व वाटर. ये प्रेस्पायर और यूरिनेट बहुत कम करता है. ओके, इट्स नॉट वेस्टिंग एनी वाटर. इन दिस वे कैमल कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन डेजर्ट विदाउट फूड एंड वाटर. इसी वजह से ये बहुत लंबे डिस्टेंसेस फूड और वाटर के बिना कवर कर सकता है. अब स्नेक्स, लिजर्ड, डॉर्माइस ये सब आपके डेजर्ट में मिलते हैं. लिजर्ड और स्नेक, लिजर्ड एंड इंसेक्ट दे लिव अंडर स्टोन्स or small cracks hole, while dormice lives on holes underground. ये हमारे जो लिजर्ड्स और इंसेक्ट हैं वो स्टोन्स के नीचे रहते हैं जैसे, और डॉर्माइस जो है वो डीप होल्स बना लेते हैं इन द सैंड टू लिव देयर. ओके, अंडरग्राउंड होल्स बनाते हैं. नाउ लेट्स सी पोलर रीजन्स और माउंटेन्स में कैसे रहते हैं. अब पोलर रीजन होते हैं, दे आर वेरी कोल्ड. ठीक है, वो बहुत कोल्ड होते हैं. In these regions, animals such as penguin, इन रीजन में पेंगुइन और पोलर बियर जैसे एनिमल्स सीन ये आपको मिल जाएंगे. और इनके बहुत स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि दे कैन विदस्टैंड इतनी ठंड को रोकने के लिए. व्हाट दे कैन डू, दे हैव अ फैट लेयर अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म. फैट की एक लेयर होती है अंडर देयर स्किन व्हिच हेल्प्स टू कीप देम वार्म. ओके, एंड ओशंस में क्या होता है? लार्ज और कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट होती है ओशंस. और ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, दे आर द लार्जेस्ट हैबिटेट. यहाँ पे आपको ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिशेस आपको ओशन में मिल जाएंगी. फिशेस आपको इतनी मिलेंगी जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हो पाई हैं सही से. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर कहाँ होता है? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स में जो वाटर होता है दैट्स कॉल्ड फ्रेश वाटर हैबिटेट. फिश, फ्रॉग्स, सैलमंडर्स ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. और जो फ्रॉग्स और सैलमंडर्स यहाँ रहते हैं ये वाटर में भी रह सकते हैं और ये लैंड पर भी रह सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? एम्फीबियंस भी बोल देते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी. अब हमने हैबिटेट देख लिया. नाउ विल सी व्हाट आर द ऑर्गन्स दे आर यूजिंग फॉर ब्रीथिंग. क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके ऑर्गन डिफरेंट होंगे ना एज कम्पेयर टू द एनिमल्स व्हिच आर लिविंग ऑन लैंड. लेट्स सी. एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. क्यों?
which breaks down their food and releases energy. ऑक्सीजन उनके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और उसके बाद क्या होता है, उससे एनर्जी मिलती है. ठीक है. दे यूज दिस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. ये एनर्जी यूज किस में होती है, वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में. जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, या फिर हम लोग कुछ काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो फूड से ही मिलती है. सॉरी, वो फूड से मिलती है, बट उस फूड से जो एनर्जी को ब्रेक डाउन करना होता है वो ऑक्सीजन करती है. ठीक है. अब ह्यूमन बीइंग्स और लैंड एनिमल्स जैसे डॉग, काउ, हॉर्स, कैमल, लायन, ये सब क्या कहते हैं, ये ऑक्सीजन अपने लंग्स के लिए थ्रू लेते हैं. और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स. ठीक है. ये भी अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. यहाँ हमारी काउ, लिजर्ड, बर्ड्स, ये सब लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर रही हैं. ओके. देन जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडी. और इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं. स्पाइरिकल्स वो होल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और इसी के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. Spiracle open into a series of thin tube and these tubes are called trachea. अब ये जो स्पाइरिकल वाले होल हैं वो कहाँ खुल रहे हैं, they are opening directly into thin tubes which are called trachea and they supply air to all parts of the body. और ये हर पार्ट ऑफ द बॉडी तक एयर पहुंचा देते हैं. अब फिशेस और क्रैब्स में क्या होते हैं, दे हैव गिल्स. ओके, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ. और गिल्स में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. और गिल्स पहले ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द वाटर. गिल्स के पास ऑक्सीजन आई वाटर से और गिल्स से ऑक्सीजन चली गई डायरेक्टली उस एनिमल के ब्लड स्ट्रीम में. फ्रॉग एंड सैलमैंडर्स आर एम्फीबियंस. तो ये एम्फीबियंस होते हैं और ये जब अपना लैंड पे होते हैं तो लंग्स से ब्रीथ करते हैं and when they're in water they breathe through their skin. They are breathing through what? They are breathing through their skin. ठीक है. Frogs breathe through lungs on land and through skin in water. Okay. Amoeba and earthworm breathe through the surface of their body. अमीबा और अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इनका बॉडी का ये पूरा सरफेस है और इस पूरे सरफेस के थ्रू दे कैन ब्रीथ. ओके, लेट्स सी अ साइंस स्पार्कल. As a whale rises up to the surface of water, जैसे ही वो वाटर की सरफेस तक आती है, it fills its lung with air. ये अपने lungs को क्या कहते हैं, it fills it with air. This air lasts for some time in water. ये air थोड़े टाइम तक वाटर में रहती है. Then again it comes back and gives out oxygen, carbon dioxide in form of fountains from its nostril. जो हमारी व्हेल है वो क्या कर रही है, अपने सरफेस ऑफ वाटर पे आती है, अपने लंग्स को फिल करती है एयर के साथ और वापस पानी में चली जाती है. और फिर से वापस जब वो आती है तो वो अपने नॉस्ट्रल के थ्रू फाउंटेन्स रिलीज करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है. ठीक है. अब हम एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बारे में देखते हैं और कैसे उनकी डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स की वजह से दे आर ग्रोथ. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट आ गए हमारे कौन, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स से तो अभी तक आप फेमिलियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो पढ़ लेते हैं. Which eat only plants and plant products. They are called what? They are called herbivores. And herbivores के पास क्या होता है? They have sharp front teeth for cutting and biting leaves. इनके sharp front teeth होते हैं जिससे वो bite कर सकते हैं leaves and grass. For example, इनके example क्या हैं? Cow, goat, giraffe, horse, deer, etc. ये कुछ इनके examples हैं herbivores के. फिर carnivores क्या होते हैं? They are animals which eat flesh of other animals. जो दूसरे animals का flesh खाते हैं. अब ये इनके teeth कैसे होते हैं? They have sharp and pointed teeth to tear meat. इनके sharp और pointed teeth होते हैं जिसकी help से ये meat tear कर सकते हैं. They have strong grinding teeth to chew meat and bones. इनके grinding teeth भी बहुत strong होते हैं ताकि ये meat और bones को chew कर पाए. For example, we have a lion, tiger. यहाँ पे एक tiger है हमारे पास
जो फ्लैश खा रहा है दूसरे एनिमल्स का। अब ओमनिवोर्स क्या होते हैं? दीज आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश एंड दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ये प्लांट्स और फ्लैश दोनों खा लेते हैं, इसीलिए इनको ओमनिवोर्स बोला जाता है। लाइक क्रो एंड बियर, दीज आर अ गुड एग्जाम्पल, है ना। ये दोनों चीजें खा लेते हैं, जो अवेलेबल होगा they'll eat that. Okay, let's see a science fact. Animals that feed on liquid are called proboscis. For example, butterfly, bees, they drink the nectar, right? ये बस nectar लेते हैं अपने meals में, तो they are called proboscis. Okay? Organs for movement. अब हम ये देखते हैं कौन से organs जो हैं वो movement में help कर रहे हैं। अब animals they go from one place to another for what? For food, shelter and to protect themselves from enemies. अपने आप को enemies से बचाने के लिए, ठीक है। अब कौन से एनिमल्स की बात हो रही है? लाइक डियर, टाइगर, शीप, ये कुछ एनिमल्स हैं। एंड हाउ मेनी लिम्स डू दे हैव? दे हैव 4 limbs, 2 in the front, and the 2 front limbs are called forelimbs and 2 at the back which are called hind limbs. Okay, जो back limbs है उनको हम hind limbs बोलते हैं। Some reptiles like lizard and crocodile, जो हमारे lizard और crocodile है यहाँ पे, have legs which they crawl on the ground. ये इनके जो legs होते हैं वो इनको crawl करने में help करते हैं, ठीक है। ये इन्हें crawl करने में, यानी हम जिसे रेंगना कहते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। जो स्नेक होते हैं वो भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं, बट इनके लेग्स नहीं होते। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स इन देयर लोअर बॉडी। जो हमने यहाँ स्नेक देखा था उसके पास क्या होता है? दे हैव स्केल्स इनके लोअर बॉडी पे, जो इनको आगे क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं? दे हैव 6 legs. और कुछ इंसेक्ट्स के पास दे हैव विंग्स। एंट्स और कॉकरोचेस, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉल करते हैं, यानी ये अपने लेग्स के यूज करके क्रॉल करते हैं जमीन पे। फिशेस, व्हाट दे यूज फिन्स टू स्विम, एंड फ्रॉग्स यूज webbed feet to swim. Otherwise, frogs are seen jumping with those limbs. Okay. Most of the birds can walk on land and fly in air. Birds ज़्यादातर land पे walk कर सकती हैं and they can fly in the air. They have wings to fly and legs to walk. Legs उनके पास होते हैं चलने के लिए and they have wings that can help them in flying. Okay. Eagle, pigeon, parrot, ये कुछ example हो गए। और कुछ birds ऐसी भी होती हैं who cannot fly. They are emu, kiwi and ostrich. Because why? They have weak wings. इनके पास wings होते हैं but इनकी wings जो होते हैं बहुत weak होते हैं। अब आप देख सकते हैं इन insects के पास they have 6 legs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? And we have a octopus which has, sorry, a frog which has a webbed feet. We have eagle which has both wings and legs. जब उसका मन करेगा it can fly and it can rest and walk too. Okay, now let's come to the last topic which is migration. Of migration क्या होता है? अब एक वेदर कंडीशन आपकी क्या हुई जब एक प्लेस आपके लिए इनटॉलरेबल हो जाए, ठीक है, उसकी कंडीशंस आप लोगों से नहीं सहन कर पा रहे हैं, व्हाट विल यू डू? यू विल लीव दैट प्लेस एंड गो समवेयर एल्स। सेम विद एनिमल्स, जब वो उस एनवायरनमेंट को नहीं कर पाते हैं, लाइक वो उसे सहन नहीं कर पाते हैं, दे मूव टू अ सूटेबल एनवायरनमेंट। वो मूव करते हैं कहाँ? दे मूव टू अ सूटेबल एनवायरनमेंट। और ये जो एनिमल्स की मूवमेंट है इन लार्ज ग्रुप्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल इन लार्ज ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स के बीच में बर्ड्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी क्रीचर्स होती हैं। बर्ड्स सबसे ज्यादा माइग्रेट करती हैं और ये हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक ग्रुप में एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रही हैं, अनलेस दे फाइंड दैट पहली वाली जगह पे the weather or the condition or the environment is suitable for their living. ये चैप्टर तो खत्म हो गया, हम इसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें सब कुछ याद रहे, है ना। The place where an animal lives is called habitat. एक जगह जहाँ पे एनिमल रहता है it's called habitat. Special features that suit
them to live in the habitat is called adaptation. जो उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो उन्होंने धीरे धीरे चेंजेस लाए अपने अंदर टू सूट द एनवायरमेंट, दैट्स कॉल्ड द एडेप्टेशन. लैंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और इंसेक्ट ब्रीथ करते हैं टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स. ठीक है. एंड फिशेस हैव गिल्स. herbivores eat only plants. जो herbivores होते हैं वो सिर्फ plants खाते हैं, एंड carnivores जो होते हैं they eat only flesh. वो सिर्फ flesh खाते हैं. और omnivores कौन से animals होते हैं, जो दोनों plants and flesh खाते हैं. Birds are the greatest migratory creatures. जो birds होती हैं वो सबसे ज़्यादा माइग्रेट करने वाली creature होती है. I hope this chapter was clear to you. और आपने देखा कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के पास डिफरेंट अडेप्टेशन है, और कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर चुके हैं. Now I'll meet you in the next chapter. Until then, you have to revise this chapter and you have to take very good care of yourself. Thank you, kids.